In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। May the grace and the mercies of our Lord be with us now and always. हमारे प्रभु की कृपा और दया हमारे साथ अब और हमेशा बनी रहे। We are now going to enter into one of the most precious opportunity of partaking in this year's Lent. अब हम इस साल के लेंट में भाग लेने के सबसे बहुमूल्य अवसर में प्रवेश करने जा रहे हैं। It is God's mercy that we can partake and participate in this Lent, which brings spiritual growth and much grace from the Lord, and our life, spiritual life, be renewed in a way that nothing else can do. यह परमेश्वर की दया है कि हम इस लेंट में सहभागी और हिस्सा ले सकते हैं, जो आध्यात्मिक विकास और प्रभु से अत्यंत अनुग्रह लाता है और हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से इस तरह से नवीनीकृत किया जाता है जो किसी और से नहीं हो सकता। Now, how do you prepare for Lent? अब हम लेंट की तैयारी कैसे करते हैं? Both individuals and as a family and as a congregation, the faithful, we all look forward and do decide that this is going to be a season of Lent, which means journeying with Christ for greater understanding and intimacy with the Lord Jesus Christ. व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसिया के विश्वासी के रूप में हम सभी प्रतीक्षा करते हैं और निर्णय लेते हैं कि यह लेंट का समय होने जा रहा है, जिसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के साथ अधिक समझ और मसीह के साथ घनिष्ठता पाने के लिए यात्रा करना। One thing you want to make sure that you do practice Lenten prayers. They are very, very important prayers. And of course, partaking from the Eucharist and fellowship and meditating on God's Word, these are all part of the Lenten journey. एक बात जिसे आपको सुनिश्चित करना है वह यह है कि आप लेंटन प्रार्थना का उपयोग करें। वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं और निश्चित रूप से प्रभु भोज और संगति में भाग लेना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ये सभी लेंटन यात्रा के भाग हैं। Of course, fasting, either one meal or two meals or whatever, is part of Lent. निस्संदेह दिन में एक या दो समय के भोजन का उपवास करना या जो कुछ भी लेंट का हिस्सा है। Avoiding certain kind of food is also part of the Lent journey. कुछ खास तरह के खाने से परहेज करना भी लेंटन यात्रा का हिस्सा है। And the reason is this, the scripture says, man shall not live by bread alone, but by the word of God. And this is a journey we experience to be sustained supernaturally by the Lord. और इसका कारण यह है, पवित्र शास्त्र कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन प्रभु के वचन से जीवित रहता है, और यह एक यात्रा है जिसे हम प्रभु द्वारा अलौकिक रूप से बनाए रखने का अनुभव करते हैं। Think about the season where all the trees shed their leaves, a season of giving up everything. Their inner strength and depth now is increased. The same thing with our life. उस मौसम के बारे में सोचिए जिसमें सभी पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, सब कुछ त्यागने का मौसम। उनकी आंतरिक शक्ति और गहराई अब बढ़ गई है। यही हमारे जीवन के साथ भी है। Fasting is not just from food. Fasting from sin, habits. Somebody cannot give up talking to people all the time, hearing negative things, gossip. They choose not to do any of these things during this season, but change by God's grace. उपवास केवल भोजन से नहीं है, पाप से, आदतों से उपवास करना। जैसे
कोई हर समय लोगों से बात करना, नकारात्मक बातें सुनना, गपशप करना नहीं छोड़ सकता। इस लेंट काल के दौरान वे इनमें से कोई भी काम नहीं करने का चुनाव करते हैं। प्रभु की कृपा से बदल जाते हैं। Of course, fasting always help not only our inner life but also fasting from foods help our health, which is important for us to serve God and live for the Lord. निसंदेह उपवास हमेशा न केवल हमारे आंतरिक जीवन में मदद करता है, बल्कि खाद्य पदार्थों से उपवास हमारे स्वास्थ्य को भी मदद करता है। हमारे लिए परमेश्वर की सेवा करने और परमेश्वर के लिए जीने के लिए महत्वपूर्ण है। As your metropolitan, your shepherd, I invite you, my children, to follow me throughout this Lenten journey, and we will be happy as the people of God, and it will reward much for our life. आपके मेट्रोपॉलिटन, आपके चरवाहे के रूप में मैं आपको अपने बच्चों को आमंत्रित करता हूं इस पूरे लेंटन यात्रा में मेरा अनुसरण करने के लिए, और प्रभु के लोगों के रूप में खुश होंगे, और यह आपको जीवन में अत्यंत प्रतिफल लाएगा। I am personally so excited and looking forward to this year's Lenten season. मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्साहित हूं और इस साल के लेंटन समय का इंतजार कर रहा हूं। We are following the Lord Jesus Christ, his 40 days of journey, finally to the cross and resurrection. हम प्रभु यीशु मसीह की 40 दिनों की यात्रा का अनुसरण कर रहे हैं, आखिरकार क्रूस और पुनरुत्थान की ओर। So I say to you, follow me as I follow the Lord. इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैं परमेश्वर का अनुसरण करता हूं, वैसे ही मेरे पीछे हो ले। You see on my headgear the cross which is Christ that I follow. आप मेरे सिर की टोपी पर क्रॉस को देखते हैं, जो मसीह का है, जिसका मैं अनुसरण करता हूं। But if you look on the back of my hat, लेकिन यदि आप मेरी टोपी के पिछले भाग को देखेंगे, you'll find a shepherd leading the sheep. तो आप भेड़ों को नेतृत्व करने वाला एक चरवाहा को पाएंगे। Well, you can look at it right here. हाँ, आप इसे यही देख सकते हैं। That means I'm following and you are following with me. इसका मतलब कि मैं अनुसरण कर रहा हूं और आप मेरे साथ अनुगमन कर रहे हैं। And remember, the Lord has called us to be His. It is not, oh, I have to do it. No, we get to participate in the Lent. And may the Lord bless you and strengthen you and answer your prayers, especially during this year of Lent. और स्मरण करें कि प्रभु ने हमें अपना होने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं कि ओह, मुझे यह करना है। नहीं, हमें लेंट में भाग लेने का मौका मिल रहा है, और प्रभु आपको आशीष दे और आपको मजबूत करे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, खासकर इस साल के लेंट के दौरान। May the Lord's blessing be with you, the Father, Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। Amen. आमीन।